Good evening to all. I think my voice is audible to everyone. Okay, you can write yes in the chat box if my voice is properly audible to everyone. Those who cannot listen my voice, click on join audio button on your Zoom app and click on Wi-Fi there. You can able to hear my voice. I have put my one message also on the chat box. Okay. So we start with our webinar. Our today's webinar topic is solar system design and guidance on how to start a solar business. Okay, so before that, I'll just request all the participants to mute your mic so that you can hear my voice properly. At the last, we're going to be talk and have a question answer session on this. Okay. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर डिजाइनिंग के ऊपर। मैं आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस इसमें देने वाला हूँ और बिजनेस इसमें कैसे स्टार्ट करना है हमें सोलर में। आप में से काफी सारे जो लोग हैं वो कोई जॉब वगैरह करते होंगे या फिर समवन दे आर डूइंग द बिजनेस आल्सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोलर फील्ड एंड दे वांट टू आल्सो इन्वॉल्व इनटू द सोलर बिजनेस। देन हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग द सोलर बिजनेस? जो ऑलरेडी सोलर बिजनेस में है चैट बॉक्स में मी करके टाइप करिए। जिनका ऑलरेडी सोलर में बिजनेस है, कोई इंस्टॉलर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कोई सोलर में मैन्युफैक्चरर वगैरह है, इन्वेस्टर्स वगैरह है, कोई भी सोलर से जो भी रिलेटेड है चैट बॉक्स में मी करके टाइप कीजिएगा। ओके, आपको जूम के एग्जैक्टली नीचे चैट बॉक्स दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है मी करके। इफ यू आर बिलोंगिंग टू द सोलर सेक्टर, इफ इट इज नॉट, इट इज ऑल राइट। ओके, so I think no one has been belonging to the solar sector. No one has typed the me in the chat box. Okay, then all the audience will be a very basic. So I'll just start with the very basic before we can start with our webinar. So before we can start, let me introduce myself. My name is Mr. Kiran R. Beldar. I am a BEE certified energy manager and solar power park consultant. So we are actually working in the various sectors, residential one, commercial one, and utility scale type of the project designing. Okay. So whenever we talk about the scenario of the solar energy, how the people are viewing the solar energy and the point of view in a solar energy, whether they are convincing on this solar energy, what kind of an opportunity that you have, and whether it could be beneficial to switch into the solar sector. On that topic, we're going to be on today's matter. So whenever we see the scenario here, you can see on a slide. Okay, तो यहाँ पे आप slide देख सकते हो. The current rooftop solar installation, when we are talking about the solar sector, there are totally three types of the solar sector on which we can able to work. तीन टाइप है हमें सोलर सेक्टर में. पहला तो है रेसिडेंशियल स्केल. रेसिडेंशियल मतलब जो घरेलू सोलर इंस्टॉलेशंस हमारे इसमें होते हैं. घरेलू मतलब जहां पे कोई कंज्यूमर है, कोई कंज्यूमर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलर को उनका कंजम्पशन 10 किलोवाट से नीचे है या फिर 10 किलोवाट है, उनका जो पावर प्लांट इंस्टॉलेशन है, दैट वी कॉल इट एज द रेसिडेंशियल काइंड ऑफ एन सोलर इंस्टॉलेशंस, कंसीडरिंग द हाउसिंग सोसाइटीज आल्सो. दूसरा जो इसमें टाइप है, सेकेंड वन, इट इज अ कमर्शियल टाइप ऑफ एन सोलर इंस्टॉलेशन. In commercial solar installation, you will find that the factory, we can have the commercial shopping malls, then other kind of shops. These are types which are coming under the commercial segment, from the 10 kilowatt up to the 1 megawatt. Besides that, 10 to kilowatt up to the 1 megawatt. So whatever kind of projects are there basically, so that are belonging to the commercial one. And the last is utility scale type of an project. So whosoever projects are more than 1 megawatt of an size, it might be 1, 2, 3, or solar park you can say basically. So these are belonging to the utility scale type of an segment. Utility scale type of an segment. Okay. So whenever we design any project or whenever we want to involve into the utility scale type of an project, the arrangement and consequences and the policy formulation for this utility and commercial scale will be quite different comparing to the residential scale type of an project. So you might have learned regarding that government subsidy देता है. आपने सुना होगा YouTube चैनल के ऊपर या फिर किसी चैनल के ऊपर basically.
that government is promoting the solar energy by giving the subsidy, 40% of an subsidy. I hope my sound is properly audible to everyone. Some of me are messaging me, sound नहीं आ रहा है करके. If it is properly, then you can just type yes in the chat box. अगर sound मेरा proper है, if any kind of a problem is there in a sound, that also you can write in the chat box so that I can do the alternate arrangement on it. Okay. So we were talking about the residential one, commercial scale type of an segment, and the utility scale type of an project likewise. So before we can jump and switch into the solar sector, or we'll start learning into the solar sector, we have to think about it basically. In which segment I want to work, because every segment will require some policy, and according to the manpower and the design knowledge is also been required in that particular case. Now on a slide, you can just see here, current rooftop solar installation when you see in India, up to 2021, this data has been given. It is 7.1 gigawatt of solar installation has been done in currently in India. मतलब 7.1 गीगावाट के जो इंस्टॉलेशंस हैं वो अभी तक हुए हैं रेसिडेंशियल सेगमेंट में. अब जब गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था 2022 का, वो था 40 गीगावाट रेसिडेंशियल स्केल में इंस्टॉलेशन होना चाहिए, ऐसा उनका टारगेट था. लेकिन अब तक हुआ है 2021 तक का फिगर है 7.1 गीगावाट. यहां से हम एनालाइज कर सकते हैं व्हाट इज अ लैग बिहाइंड इट, वेयर इज अ 40 गीगावाट एंड वेयर इज अ 7.1 गीगावाट. इन बिटवीन 34 गीगावाट इतना अब तक इंस्टॉल नहीं हुआ जो टारगेट यहाँ पे सेट किया था. अब जब एमएनआरई का जो टारगेट है बेसिकली सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन का, वो हर साल बदलते जाता है. हर साल दे कैन जस्ट कीप इट एज 2022, अगली बार वो रखेंगे 2030 का, 2040 का, लाइकवाइज. बट यू कैन सी what the target and promotion the government is setting and what actually the career opportunities that we can able to find into this particular segment. अगर हम बात करें सिर्फ 2021 की, मतलब ये जो 7.1 गीगावाट का फिगर था, ये था 2008 से लेके 2021 तक पूरे इंस्टॉलेशंस के बीच में. Whenever we talk about only the last year, in last year 1.7 gigawatt rooftop solar installation has been done in India, all over India, in all the states. मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं तो 15% जो इंस्टॉलेशन थे वो सिर्फ लास्ट ईयर में हुए थे. इसका मतलब जो लोगों का देखने का जो नजरिया है, द अवेयरनेस ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी, वो हम बोल सकते हैं इसमें, दैट इज क्वाइट गुड एंड क्वाइट हाई इन दैट. अब यही हम अगर बात करते हैं तो हम इसमें करियर अपॉर्चुनिटी हमारे ढूंढ सकते हैं. If I want to install the solar power plant, if I want to work into the solar energy business, likewise. अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के फ्यूचर के बारे में, तो सोलर एनर्जी का फ्यूचर तो काफी ब्राइट है. जैसे कि हमें पता है कि द कोल सिनेरियो, कोयला का जो कमी अभी आ चुकी है, बेसिकली आप पेपर पढ़ते होंगे तो वहां पे आपने पढ़ा होगा बेसिकली जो कोयला की जो कमी है, वो भी मतलब वो फॉसिल फ्यूल है बेसिकली, कोयला जो फ्यूल होता है, जिससे थर्मल पावर प्लांट में, I just request all the participants to just mute your mic. Okay. तो दैट इज अ फॉसिल फ्यूल. उसका कुछ लिमिटेशंस वगैरह होता है इसमें थर्मल पावर प्लांट में या फिर एटॉमिक पावर प्लांट में. लेकिन ये केस सोलर एनर्जी में या फिर विंड पावर प्लांट में नहीं होता है. विंड पावर प्लांट हर कोई लगा नहीं सकता. जहाँ पे हम पवन चक्की लगाते हैं बेसिकली, वो हर कोई नहीं लगा सकता. उसका कॉस्टिंग बहुत हाई होता है, 1 मेगावाट का ही बड़ा कॉस्टिंग होता है इसमें. तो solar power plant is the only feasible option for the people to go towards the solar energy and the renewable energy option. ओला का हमारे पास है इलेक्ट्रिकल स्कूटर. आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिकल पे चलने वाले जो बसेस होंगे, ट्रक्स होंगे, एवरीथिंग द व्हीकल विल गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सेगमेंट ओनली. तो इतना अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है एज पर द एमएनआरई गाइडलाइंस, 15,000 to 80 टेरावाट किलोवाट आवर, इतना रिक्वायरमेंट 2040 तक हो सकता है. अब जो थर्मल पावर प्लांट हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट जो जनरेट करता है, वो इसके हद में काफी कम है. तो बाकी का इतना एनर्जी कहाँ से आएगा? इतना एनर्जी आएगा आपके सोलर पावर प्लांट से. लोगों को प्रमोट करके वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, वो अपना इंडिपेंडेंस वहां पे ढूंढेंगे, एनर्जी इंडिपेंडेंस हम जिसे बोलते हैं. तो यहाँ से हम अपना करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं.
जैसे कि हम फिगर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, एनर्जी डिमांड के बारे में बात करते हैं, देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट कुड बी द ग्रीन एनर्जी, दैट इज द सोलर एनर्जी। ओके, अगर हम बात करते हैं फिगर के बारे में, यहाँ पे एक ग्राफ है जो एमएनआरए ने डिस्प्ले किया था उनके वेबसाइट के ऊपर। द एमए सोलर पावर प्लांट के जो इंस्टॉलेशंस है रेसिडेंशियल सेगमेंट में, वो कैसे कैसे हर साल में बढ़ते जाते हैं, हर साल में यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। अगर आप देखते हो 2020 में, वो तो कोरोना सिचुएशन था, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन 2021 में जो इंस्टॉलेशंस हुए, वहां से लोगों के बीच में जो सोलर एनर्जी का देखने का नजरिया है, वो हमें यहाँ से जस्ट एक बार हम ग्रैब इसमें कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किस किस स्टेट में, इंडिया में किस किस स्टेट में सोलर एनर्जी का ज्यादा इंस्टॉलेशन है, मतलब वहां की जो गवर्नमेंट है या फिर वहां के जो सोलर इंस्टॉलर्स और वहां पे जो ग्रुप है, एनजीओ का ग्रुप, वो कैसे इसका प्रमोशन करता है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड तेलंगाना। These are the 10 state who is having the highest amount of installation, रूफटॉप में भी, कमर्शियल में भी और यूटिलिटी स्केल टाइप ऑफ एन प्रोजेक्ट में भी। अभी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है गवर्नमेंट का, मतलब जो प्रमोशन है सोलर सिटी के बीच में। सोलर सिटी का मतलब लोगों को प्रमोट करना सोलर एनर्जी के इसमें, और ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फोकस इसमें करना होता है। तो ये जो स्टेट्स है, अगर आप इसी 10 स्टेट्स में से बिलोंग करते हो तो ऑलरेडी लोगों के बीच में ये अवेयरनेस है, और गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा इसमें प्रमोशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी के स्टेट भी अभी प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कि हो गया आसाम, मिजोरम, या फिर नॉर्दर्न टाइप ऑफ दो जो स्टेट्स है, नॉर्दर्न ईस्ट में, या फिर नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में जो हमारे इंडियन में स्टेट्स हैं, वहां पे भी अच्छा खासा प्रमोशन जो है सोलर एनर्जी में अभी चल रहा है। तो वहां पे भी अगर आप कोई बिलोंग करता है जो इस 10 स्टेट से नहीं है और बाकी के स्टेट्स में से है, तो आपके लिए भी अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी है अपने सोलर एनर्जी को बूस्ट करना, अपने करियर को बूस्ट करना ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर में। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। मुझे काफी सारे लोगों ने मैसेज भी किया था पहले, इसीलिए हमने एक सेशन यहाँ पे अरेंज किया है कि करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, मैं आपको काफी सारे इसमें ऑप्शन दूंगा, आपको इसके बारे में सोचना है, आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है, और वेदर आप इसमें शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं, ये भी आपको इसमें समझना है। तो चलो हम बात करते हैं अभी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटी है जो आप ढूंढ सकते हो इसमें, वो है सोलर इंस्टॉलर आप बन सकते हो। सोलर इंस्टॉलर, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेटर, उसी को बड़ी कंपनी को हम बोलते हैं ईपीसी कंपनी। लाइकवाइज बेसिक लेवल पे हम सोलर इंस्टॉलर का काम कर सकते हैं। अब इंस्टॉलर का मतलब क्या होता है, पैनल को परचेस करना, बाकी के पैरामीटर्स को परचेस करना, परचेस करके किसी कंज्यूमर के रूफटॉप के ऊपर हम उसको लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंस्टॉलर। लाइकवाइज तो लोगों का हमें रिक्वायरमेंट देखना होता है, लोगों को हमें हेल्प करना होता है उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करवाने में, वैसे हम अपना करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो इंस्टॉलर में जो आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो इसमें मैटर नहीं करता है। बेसिकली इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आप स्मॉलर स्केल के प्रोजेक्ट में से स्टार्ट कर सकते हो, आप रेसिडेंशियल स्केल में से स्टार्ट करो, 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट पहले आप इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट करो। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे आएगा वैसे आप स्टार्ट करो 4 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच में, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने फ्यूचर को, अपने करियर को आगे इसमें बढ़ाते जाना है। इसमें क्या लगेगा आपको, रिक्वायरमेंट इसमें होगा आपको इसमें डिजाइन नॉलेज होना चाहिए। डिजाइन मतलब एकदम हाई लेवल का नॉलेज होने की इसमें जरूरत नहीं होती है। बेसिक नॉलेज, सोलर पैनल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, स्ट्रिंग आप कैसे करोगे, इन्वर्टर आप किस कंपनी का लोगे, कैसे आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसमें करोगे। लाइकवाइज ये जो कुछ पैरामीटर्स है इसमें सोलर इंस्टॉलर में, ये आपको इसमें पता होने की जरूरत है। दूसरी जो करियर अपॉर्चुनिटीज हम अभी बात करेंगे वो है सोलर सर्विस सेंटर आप स्टार्ट कर सकते हो। अब हर कोई अगर सोलर इंस्टॉलर नहीं बनना चाहता है तो बाकी सारे बहुत ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आप अप्लाई करके इंस्टॉलर से भी ज्यादा जो पैसा है, बेसिकली इनकम जो है आपका, वो इसमें आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि पहले वाले जो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं कमर्शियल में, यूटिलिटी स्केल में, तो उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। किसी पावर प्लांट में स्ट्रिंग फॉल्ट होता है तो उसमें मेंटेनेंस आएगा, सोलर पैनल का फ्रीक्वेंट क्लीनिंग होता है,
उसका मेंटेनेंस आता है, उसके बाद वायरिंग कनेक्शन जो है, बाकी के जो पैरामीटर है उसका सर्विसिंग वगैरह आता है। तो आप डेडिकेटेडली सोलर सर्विस सेंटर इसमें स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको इंस्टॉलर बनने की जरूरत नहीं है, डीलरशिप लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि सोलर इलेक्ट्रिकल नॉलेज कैसे होता है, सोलर पावर प्लांट का डिजाइन कैसे होता है। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू बिकम और ओपन द सर्विस सेंटर फॉर द सोलर पावर प्लांट कस्टमर्स। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें, वो है सोलर डीसी होम सिस्टम। आप इसमें बना सकते हो, खुद बना सकते हो आप। जैसे कि आप सोलर सेल परचेज कर सकते हो, या फिर जो कंपनी सोलर पैनल बनाती है उस कंपनी को आप अप्रोच करो, आपके हिसाब से 30 वॉट का, 20 वॉट का, 10 वॉट का ऐसे सोलर पैनल आप बनाने के ऑर्डर उनको दो, या फिर आप खुद बनाओ। डीसी लाइट, छोटा सा बैटरी, डीसी फैन, ऐसा आप छोटा अपना डीसी होम सिस्टम बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में काफी सारे ऐसे विलेजेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने तो बहुत ट्राई किया है, अब वो करने भी वाले हैं बेसिकली। लेकिन फिर भी जो लोड शेडिंग का जो पैरामीटर है वो कंसिडर करके विलेजेस में काफी सारे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। उनको ज्यादा पैसा खर्चा करना नहीं होता है सोलर के ऊपर, या फिर इन्वर्टर लगाने में जो खर्चा आता है उनको वो भी नहीं करना होता है। तो एटलीस्ट 3 to 5 thousand में उनको आप सोलर डीसी होम सिस्टम बना के उनको बेच सकते हो, या फिर आप उनमें सप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है डीसी होम सिस्टम बनाने में, लेकिन ये काफी किफायती भी होता है, और इसमें अच्छा खासा जो करियर अपॉर्चुनिटी आपका है वो आप इसमें कर सकते हो। मैं आपको अपना केस स्टडी बताता हूँ। मेरे एक पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया था। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा सोलर होम सिस्टम अपना बनाया। उन्होंने छोटा पैनल बनाया, 5 वॉट का पैनल एक लिया, एलईडी लाइट्स लिया, छोटा सा उन्होंने बैटरी लिया, और एक छोटा सा सेटअप बनाया, एक कस्टमाइज सेटअप उन्होंने बनाया। ऐसे उन्होंने 1000 पीसेस बनाए। और जो वेंडर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं मार्केट में, तो उनको उन्होंने रेंटल बेसिस पे वो दिया था, रेंटल बेसिस पे। तो वहां से वो 100 रुपीज का रेंट मंथली बेसिस पे वो कलेक्ट करते थे। तो ऐसा उन्होंने अपना करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढा, अपना करियर अपॉर्चुनिटी। आपको ऑप्शंस तो काफी सारे मिल जाएंगे, ऑप्शंस काफी सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है इसमें वो आपको खुद ढूंढना होगा। थोड़ा आपको गाइडेंस लगेगा इसमें, लेकिन अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे करके आ ही जाता है। ओके, अब चौथा जो इसमें ऑप्शन है अपने सोलर करियर अपॉर्चुनिटीज में, वो है आप डेडिकेटेडली डीलरशिप ले सकते हो। जैसे कि आपका कोई एग्जिस्टिंग शॉप है, किसी किसी का इलेक्ट्रिकल शॉप होगा, किसी किसी का कोई अलग शॉप होगा। तो आपके पास जगह तो है, लेकिन उसमें करना क्या है? तो इस केस में आप डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। आपको सोलर इंस्टॉलर, जो आपके नजदीकी सोलर इंस्टॉलर्स है, उनके साथ आपको टाई अप करना है, और वैसे आपको अपना बिजनेस इसमें बढ़ाते जाना है। जैसे कि आपका गोल्डी सोलर हो गया, लूम सोलर हो गया, टाटा पावर्स हो गया, एपीएन सोलर हो गया, यूटीएल सोलर हो गया। काफी सारे सोलर जो कंपनीज हैं किफायती दामों में अभी सोलर डीलरशिप दे रहा है बेसिकली। तो उसमें से आप उनको कांटेक्ट करके इसमें अपना करियर अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो। डीलरशिप के टाइप कौन कौन से होते हैं इसमें? सोलर पैनल का अलग होगा आपका, या फिर जो यूटीएल या फिर एपीएन सोलर है, या फिर जो अदर काइंड ऑफ सोलर कंपनीज है, टाटा वाले हैं, अडानी वाले हैं, या फिर आपके वारी सोलर है, तो उनके पास सभी पार्ट्स होते हैं, इन्वर्टर भी होता है, पैनल्स भी वगैरह होते हैं। तो आप ऐसे कंबाइंड डीलरशिप भी उनसे ले सकते हो। दैट कुड बी द वन ऑप्शन। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और आपको फ्यूचर इसमें बनाना है, तो दैट कुड बी वन ऑप्शन। इसमें आपको डिजाइन की नॉलेज जरूरत नहीं होती कि कैसा पावर प्लांट डिजाइन होता है, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इकोनॉमिकली और बिजनेस के तरीके से आपको ये जो पैरामीटर है ये आपको इसमें बैलेंस करना होगा। ओके, पांचवा जो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, वो है सोलर स्ट्रीट लाइट। आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या फिर इंस्टॉलेशन का आप काम कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि ग्राम पंचायत में काफी सारे लोग विलेज से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत में लगता है बेसिकली, अगर आप विलेजेस में भी जाते हो, किसी सरपंच से भी आप मिलते हो बेसिकली, तो उनका रिक्वायरमेंट तो होता ही होता है कि उनको सोलर सेट लाइट लगवाना है। किसी आप कंपनी में जाते हो, तो कंपनीज का भी रिक्वायरमेंट होता है कि उनको कॉस्ट कटिंग करना होता है। कॉस्ट कटिंग करना होता है, जो रात में जो लाइट्स वगैरह होते हैं, तो उनके उनके ऊपर उनको खर्चा नहीं करना है उस केस में। तो लाइट, तो हम सोलर स्ट्रीट लाइट बनाने का या फिर सिर्फ इंस्टॉलेशन का काम इसमें हम कर सकते हैं।
ओके, तो कैसे होता है कि आपको नजदीकी जो कंपनीज हैं जो सोलर स्ट्रीट लाइट मैन्युफैक्चर करता है उनसे आपको कांटेक्ट करने की इसमें जरूरत है। जैसे कि आपको अप्रोक्सीमेट में इसमें प्राइस बता देता हूँ। अगर आपको सोलर स्ट्रीट लाइट परचेज करना है, जो आप अगर मार्केट से सिंगल स्ट्रीट लाइट लेते हो, तो उसका जो कॉस्ट है, आई थिंक स्क्रीन के ऊपर कोई ब्लर हो रहा है। ओके, तो उसका जो कॉस्ट है वो अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो 10,000 से 11,000 के आसपास एक स्ट्रीट लाइट का आपका कॉस्ट इसमें पड़ता है। लेकिन अगर आप कंपनी से डायरेक्टली डीलरशिप लेके करते हो तो 6 से 7,000 के बीच में आपका ऑल इन वन स्ट्रीट लाइट विथ बैटरीज एंड अदर चार्जेस वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे प्रैग्मेटिकली और डिप्लोमेटिकली आपको काम करना है अगर आपको सोलर स्ट्रीट लाइट के बिजनेस में एंटर करना है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। दूसरा जो करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है वो है सोलर वाटर पंपिंग का इंस्टॉलेशन। आपको पता है कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो हमारे पास काफी सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, लोगों को उनका कॉस्ट कटिंग करना होता है, वहां पे लोड शेडिंग वगैरह होता है, तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम पे वो इसमें जम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भी टाई अप करना है किसी कंपनी के साथ जो अपना सोलर वाटर पंप बेचता है। तो आप वाटर पंपिंग लगाने का जो काम है वो आपको सीखना होगा। कुछ टेक्निकल जो पैरामीटर उसमें आते हैं वो आपको पढ़ना है, आपको समझना है, और आपको सोलर वाटर पंपिंग क्षेत्र में आप आसानी से इसमें जा सकते हो। अब ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है बेसिकली, अगर आप देखते हो तो ज्यादा डिजाइन भी इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता अगर हम देखते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा खासा करियर अपॉर्चुनिटी साबित होगा। नेक्स्ट जो है आपका सोलर वाटर हीटिंग क्षेत्र में आप काम कर सकते हो। अगर आप देखते हो 10 में से एक घर के ऊपर आप देखते हो तो उसमें सोलर वाटर हीटर तो आ ही जाता है, 10 में से एक घर के ऊपर। तो इसमें भी ज्यादा डिफिकल्ट डिजाइनिंग पैरामीटर इसमें होता नहीं है, आपको सिर्फ टाइप करना है, आपको हीटर लेना है, हीटर लगवाना है, और कंज्यूमर को हॉट वाटर जो डिमांड है वो आपको निकालना है और उसका हेल्प वहां पे करना है, उसका जो हॉट वाटर रिक्वायरमेंट है वो इसमें आपको लगवाना है। तो यहाँ से भी आप अपना करियर अपॉर्चुनिटीज है, मैंने देखा है कि काफी सारे लोगों का ये फुल टाइम जॉब होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर हीटर लगाने का, सिर्फ और सिर्फ वाटर पंपिंग लगाने का। बिकॉज कोई भी एक जॉब हमें देखना है उसके ऊपर डेडिकेटेडली काम करना है। बिकॉज जब तक हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं होता तब तक कुछ भी टास्क हम इसमें कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी देखना है और उस पर डेडिकेटेडली ऊपर आपको इसमें काम करना है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम इसमें बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो करियर अपॉर्चुनिटीज है जिनको अच्छा खासा डिजाइन का नॉलेज है सोलार क्षेत्र में, अच्छा खासा डिजाइनिंग का नॉलेज है, तो वो जॉब कर सकते हैं सोलर इंडस्ट्री में। जॉब के अगर आप देखते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर सोलर जॉब के ऊपर, तो इसमें काफी सारे वैकेंसीज होते हैं। सोलर डिजाइनर का वैकेंसी हो गई, सोलर इंस्टॉलेशन की वैकेंसी हो गई, मेंटेनेंस की वैकेंसी हो गई। लेकिन उनको स्किल्ड जो पर्सन होते हैं वो इसमें नहीं मिलते हैं। वैकेंसी तो है लेकिन स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं इसमें। तो आपको अपना स्किलिंग इसमें करवाना होगा कि कैसे आप इसमें डिजाइन करते हो, कैसे आप इसमें मेंटेनेंस का पैरामीटर करते हो, कैसे अपने आप को एक स्टेप ऊपर आप इसमें लेके जाते हो। तो ये आपके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। काफी सारे कंट्रीज में भी उनके लिए लोगों का रिक्वायरमेंट होता है लेकिन उनको लोग नहीं मिलते हैं सोलर क्षेत्र में। बिकॉज एक ही पैरामीटर होता है कि लोगों को टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत होती है, लेकिन वही नहीं होता, इसके लिए ये पैरामीटर यहाँ पे होता है बेसिकली। ओके, दूसरा जो करियर अपॉर्चुनिटी हम इसमें बात करेंगे अभी वो है, अगर आपके पास कुछ भी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जो कि हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप एज एन कमीशन एजेंट के बतौर आप काम कर सकते हो। कमीशन एजेंट के बतौर थोड़ा बहुत आपको सोलर क्षेत्र में नॉलेज होने की इसमें जरूरत है। आपको ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं कंपनीज, उनके साथ थोड़ा टाई अप करना है। सोलर पावर प्लांट बाय और सेल ये जो पैरामीटर है इसके ऊपर भी आपको काम कर सकते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा बेसिकली, लोगों अभी जो जिनके पास काफी सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है उनका कैसे होता है कि वो सोलर पावर प्लांट लगवाते हैं कमर्शियल क्षेत्र में, उसको 5 साल के बाद वो बेच भी देते हैं सोलर पावर प्लांट को, और वहां से वो इंस्टॉलेशन जितना किया था तो 5 साल तक वो इलेक्ट्रिसिटी सेल करके पैसे कमाते हैं। उसके बाद सोलर पावर प्लांट बेच के अदर इनकम यहाँ पे कमाते हैं।
तो बतौर आप कमीशन एजेंट के तौर पर यहाँ पे काम कर सकते हो। किसी सोलर ईपीसी कंपनीज को आप ऑर्डर लेके आ सकते हो और वहां से आप उनका जो कमर्शियल बैकग्राउंड है वो इसमें बढ़ा सकते हो, और यहाँ से भी आप धीरे धीरे करके अपना जो अपॉर्चुनिटीज है वो इसमें बढ़ा सकते हो। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज होने की इसमें थोड़ा बहुत जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो आप इसमें सोलर टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। जैसे कि टाटा पावर, अडानी पावर, वारिस पर सोलर पावर हो गया, तो उनका काफी सारा रिक्वायरमेंट होता है। उन्होंने पैनल तो मैन्युफैक्चर कर दिए हैं, लेकिन सेल्स नहीं होता है, सेल्स नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर सेल नहीं होता है तो उस केस में वो हायर करते हैं टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दोनों में डिफरेंस होता है। टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव को पता होता है कि टेक्निकल पैरामीटर क्या है, पैनल का साइजिंग कितना है, पैनल का इफिशियंसी कितना है, इन्वर्टर का इफिशियंसी कितना है, ये पैनल लगाया तो क्या होगा, ये इन्वर्टर लगाया तो क्या होगा। तो थोड़ा बहुत नॉलेज होने की इसमें जरूरत होती है। तो आप किसी भी कंपनी में बतौर एज एन सोलर टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप इसमें आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हो। ओके, दूसरा जो करियर अपॉर्चुनिटीज अब हम बात करेंगे वो है सोलर लाइजनिंग का, और ई टेंडरिंग कंसल्टेंट का काम इसमें आप कर सकते हो। अगर आप किसी एजेंसी से बिलोंग करते हो, जो कि आपके ऑफसेट या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह होते हैं, और जो लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए होते हैं, जिनको नॉलेज है टेंडरिंग सिस्टम काम कैसे करता है, लाइजनिंग का सिस्टम काम कैसे करता है, नेट मीटरिंग की प्रोसेस कैसे होती है, तो वो आप डिटेल में सीख सकते हो कि हर स्टेट में अपना अपना लाइजनिंग नेट मीटरिंग का सिस्टम कैसे होता है। बिकॉज होता क्या है कि सोलर जो इंस्टॉलर्स है उनको नॉलेज होता है डिजाइनिंग का, लेकिन जब लाइजनिंग और नेट मीटरिंग की बात आती है तो वो बहुत हेक्टिक वर्क उनको लगता है। मेरे पास काफी सारे कॉन्टैक्ट ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि सर हमको लाइजनिंग के लिए कोई एजेंट सुझाओ, बिकॉज वो उनको डिफिकल्ट लगता है कि ये डॉक्यूमेंट बनाओ, वो डॉक्यूमेंट बनाओ, इसका डेटा शीट लो, उसका डेटा शीट लो, वो फॉर्मुलेट करो, एग्रीमेंट फॉर्म करो। लाइकवाइज तो इस केस में आपको अपना सिर्फ नॉलेज इसमें बढ़ाना है। नॉलेज इज अ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो वहां से आप पैसे इनकम जनरेट कर सकते हो। इनकम होने के बाद आप धीरे धीरे एपीसी कॉन्ट्रैक्टर एज एन यहाँ पे बन सकते हो। तो आपको जानना होगा कि नेट मीटरिंग सिस्टम काम कैसे करता है, एप्लीकेशन प्रोसेस काम कैसे करता है, टेंडरिंग सिस्टम का काम कैसे होता है, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। देन ये आपके लिए अच्छा खासा करियर अपॉर्चुनिटी इसमें फिल हो सकता है। ओके, आने वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो हम देखने वाले हैं सोलर पावर प्लांट कंसल्टेंट के लिए। हर कोई किसी को सोलर पावर प्लांट अगर लगवाना है तो उनको जरूरत पड़ती है कंसल्टेंट की। बिकॉज हर कोई इतना नॉलेजेबल नहीं होता है। जिनके पास पैसे है उनको नॉलेज नहीं होता, जिनके पास नॉलेज है उनके पास फाइनेंस नहीं होता। ऐसे काफी सारे सिचुएशंस इसमें आते हैं। तो लाइकवाइज अगर आपके पास सोलर में डिटेल नॉलेज है, कंसल्टेंट के लिए डिटेल नॉलेज बेसिकली इसमें लगता है कि पावर प्लांट डिजाइन कैसे होता है, कहीं अगर फॉल्ट आता है तो फॉल्ट सॉल्व कैसे होता है। तो लाइकवाइज अगर पूरा आपको नॉलेज है तो बतौर अपन कंसल्टेंट के बतौर आप इसमें काम कर सकते हो। कंसल्टेंट की अगर आप फी देखते हो 50,000 टू 1 लाख रुपीज फी एक ही प्रोजेक्ट का होता है। मतलब जितना इंस्टॉलर कमाते हैं उससे उतना ही इक्वल बेसिकली ये कंसल्टेंट भी कमाता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नॉलेज की इसमें जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपको एक्सपीरियंस इसमें है, देन यू कैन थिंक टू बी एज एन सोलर पावर प्लांट कंसल्टेंट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। ये ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टर्स लोगों के लिए, जिनको सोलर पावर प्लांट लगवाना तो नहीं है अपने छतों के ऊपर, या फिर उनको कोई सीखना भी नहीं है काम, लेकिन उनके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो सोलर इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन है आप रेस्को इन्वेस्टर बन सकते हो, या फिर ओपेक्स इन्वेस्टर इसमें बन सकते हो। ये बेसिकली रेस्को और ओपेक्स इसमें होता क्या है, जैसे कि किसी कंज्यूमर को सोलर पावर प्लांट लगवाना है अपने छत के ऊपर, लेकिन उनको एक पैसा भी नहीं खर्च करना है। 10 किलोवाट लगवाना है लेकिन उनको खर्च नहीं करना है सोलर पावर प्लांट लगवाने के तौर पर। तो वो क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा किसी इंस्टॉलर के पास। इंस्टॉलर के पास कॉन्टैक्ट होते हैं इन्वेस्टर के। इन्वेस्टर का काम होता है सोलर पावर प्लांट में इन्वेस्ट करना, बल्क अमाउंट इन्वेस्ट करना। 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 5.5 लाख में बेसिकली 5,50,000 के आसपास उसका कॉस्ट आता है। तो उतना जो अमाउंट है
वो इन्वेस्ट करेगा थर्ड पार्टी कंज्यूमर के रूफटॉप के ऊपर, पूरा कॉस्ट इन्वेस्टर बियर करता है। अगर आप देखते हो एक यूनिट का जो प्राइस है, जो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हो किसी डिस्कॉम से, लोकल डिस्कॉम से, तो वो पड़ता है आपको 7 रुपए या फिर 8 रुपए के आसपास। तो रेस्को इन्वेस्टर क्या करता है, सोलर से जितना इलेक्ट्रिसिटी आता है हर एक यूनिट को वो 4 से 5 रुपए के क्वांटिटी में, या फिर डिपेंड अपॉन द लोकल डिस्कॉम वो कितने रुपए में बेचता है, उससे थोड़ा कम वो पर्टिकुलर यूनिट कंज्यूमर को बेचता है। तो कंज्यूमर का भी इसमें फायदा होता है, और जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का भी इसमें बेसिकली फायदा होता है। तो ऐसे बतौर आप रेस्को इन्वेस्टर इसमें काम कर सकते हो। इसमें आपको डिजाइन की नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनेंस को किस तरीके से कहाँ पे आपको यूज करना है, इसका थोड़ा बहुत नॉलेज होने की इसमें जरूरत है। तो ये भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इसके बारे में आप अच्छा आसानी से सोच सकते हो। ओके, नेक्स्ट वाला जो लास्ट ऑप्शन हम बताएंगे वो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। काफी सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि उनको सोलर में मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको सोलर सेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट के भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं, हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, आप चाइना से कर सकते हो, साउथ कोरिया से कर सकते हो, जहाँ पे सोलर सेल का जो कॉस्ट है वो काफी कम होता है। तो यहाँ पे आप इंडिजीनियसली जो मैन्युफैक्चर्ड पैनल्स हैं वो आप इसमें बना सकते हो। तो आपको टाई अप करना है सोलर स्ट्रीट लाइट बनाने वाले कंपनी से, सोलर पंपिंग बनाने वाली कंपनी से, और सोलर इंस्टॉलर से। तो इस तरीके से आप अपना जो सोलर पैनल है वो यहाँ पे आप आसानी से बेच सकते हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो इसमें स्टार्ट कर सकते हो। इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है बेसिकली, और थोड़ा नॉलेज भी लगता है। जब हम कोई भी डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डीप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम वो पर्टिकुलर जो बिजनेस ऑप्शन है वो हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, then you can think it to be as a manufacturer into the solar panel and the inverters to that. ओके, तो ये हमने बात किया था जो काफी सारे जो ऑप्शंस है सोलर इंडस्ट्री में। सोलर इंडस्ट्री ये नहीं होता सिर्फ सोलर पैनल लगवाना, सोलर पैनल लगवाना सिर्फ एक ऑप्शन है बेसिकली, और बाकी का जो काफी सारे जो ऑप्शंस है उसमें भी उसके बारे में हम सोच सकते हैं एज एन बेटर एंड ग्रेटर करियर अपॉर्चुनिटी इन अवर डे टू डे लाइफ। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन हम बात करेंगे यहाँ पे नेट मीटरिंग पॉलिसीज। सोलर बिजनेस में आने से पहले आपको पॉलिसी के बारे में भी पता होना चाहिए। आपके स्टेट में गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को, आपके स्टेट में सिंगल फेज के, थ्री फेज के, कमर्शियल के, यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट में क्या क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और उसको लेके उसको कंसिडर करके आप अपना सोलर बिजनेस आपको बढ़ाना है। जैसे कि लेट से किसी कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है, उनको 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगवाना है। आपको देखना पड़ेगा कि अपने स्टेट की जो पॉलिसी है वो कितना अलाउ करता है। अगर सैंक्शन लोड 10 किलोवाट का है तो हम 100% सैंक्शन लोड के ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। जैसे कि बात करते हैं हम बिहार की, बिहार में सिर्फ 80% सैंक्शन लोड, उतना ही सोलर पावर प्लांट हम लगा सकते हैं। माना कि अगर 10 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगवाना है किसी कंज्यूमर में को बिहार में, और उसका सैंक्शन लोड भी 10 किलोवाट है, तब भी वो सिर्फ 8 किलोवाट का ही प्रोजेक्ट इसमें लगवा सकता है। उसमें भी काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अगर कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको हम कैसे सजेस्ट करेंगे, उसको 25 किलोवाट लगवाना है लेकिन पॉलिसी साथ नहीं दे रहा है, तो उस केस में हम क्या ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो वो भी आपको जो बैक नॉलेज है वो लेने की भी इसमें जरूरत होती है। इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में बेसिकली मैंने काफी सारे जो स्टेट्स है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट के जो पॉलिसीज है वो मैंने ड्राफ्ट यहाँ पे किया है। उनका पॉलिसी का फॉर्म हुआ, उसमें डिटेल में पॉलिसी क्या क्या है, उनका एफआईटी टैरिफ रेट कितना कितना होता है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्मुलेट किया है। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार देख लेना बेसिकली ये पॉलिसीज कैसे कैसे होते हैं। जब भी हम एंटर करते हैं सोलर बिजनेस में तो ये आपके अच्छे खासे काम में आएगा। बिकॉज सबसे पहला ही पॉइंट होता है जब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि आपके स्टेट का पॉलिसी क्या क्या है, उसके बारे में ही हम उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन जो कंज्यूमर को है वो हम यहाँ पे देंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सोलर पावर प्लांट में जब हम डिजाइन करते हैं या फिर कोई बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आने की जरूरत इसमें हो सकती है। मैंने काफी सारा स्टडी करके ऑलमोस्ट 2 years वी आर कंडक्टिंग द वेबिनार्स एंड द डिटेल वर्कशॉप फॉर द पीपल जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको सीखना है डिटेल में सोलर पावर प्लांट। उनके लिए हम डेडिकेटेडली 3 या 4 दिन का जो वर्कशॉप है वो हम यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं।
अगर आपको बिजनेस इसमें स्टार्ट करना है तो आप कैसे करोगे? आप नोट डाउन करते रहना, अपने पास आप पेन और पेंसिल आपको रखना है, नोटबुक आपको रखना है और आपको नोट डाउन इसमें करते जाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है। प्रोसेस इन अ सेंस, अगर कंज्यूमर बोलता है कि उनको सोलर पावर प्लांट लगवाने का है, तो आप कितना किलोवाट का लगवाओगे, उसका प्राइस कितना होगा, ये किलोवाट वहाँ पे फिजिबल होगा कि नहीं होगा, पॉलिसी साथ देगा कि नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। सबसे पहला ये ऑप्शन होता है, जब भी हमें नया ऑर्डर आता है तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, साइट के ऊपर विजिट करते हैं, चेक करते हैं साइट कैसा है, कितना पावर प्लांट इंस्टॉल हो सकता है, कंज्यूमर का डिमांड कितना है। उसके बाद हम 5 या 6 पेजेस का एक रिपोर्ट फॉर्म करते हैं। उसको हम बोलते हैं प्री फिजिबिलिटी और इनिशियल डिजाइन रिपोर्ट, हम इसे बोलते हैं। तो ये आपको बनाने को आना चाहिए। बिकॉज़ जब हम कंज्यूमर के साथ अप्रोच करते हैं या फिर मीटिंग के लिए बैठते हैं, तो उनके पास हम फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट लेके जाते हैं और वहाँ पे जो आंकड़े लेके रखे होते हैं, तो वहाँ उसके हिसाब से जो नेगोशिएशंस वगैरह होते हैं, वो हम इसमें कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। जो फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हम यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा जो इसमें होता है, वो है आपको डिजाइन करते आना चाहिए। अब काफी सारे जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उसमें डिजाइन करने की नेसेसिटी नहीं होती है। जैसे कि आपको इंस्टॉलर बनना है तो डिजाइन करते आना चाहिए, टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो डिजाइन करते आना चाहिए, अगर आपको सर्विस सेंटर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेगमेंट में जाना है तो डिजाइन करना आना चाहिए। तो ऐसे कुछ भी आपको ये करना है बेसिकली, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होने की इसमें जरूरत होती है इसमें। तो डिजाइन रिपोर्ट में क्या क्या होता है, पैनल का साइज कितना होगा, किस कंपनी का आपको पैनल लेना है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे करोगे, सोलर पैनल कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, पूरा जो रिपोर्ट वगैरह है प्रोटेक्शन ब्रेकर्स के साथ वो हमें कैसे लेना है, ये सब कुछ एक ही रिपोर्ट में आता है। उसको हम बोलते हैं डिजाइन रिपोर्ट। जब हम सोलर पावर प्लांट लगवाते हैं, लगवाने के बाद हम नेट मीटरिंग कनेक्शन के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो हमें एक वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है डिस्कॉम को। तो उस केस में उसको फिलअप कैसे करना है, तो ये सब इसमें आता है डिजाइन रिपोर्ट में। तीसरा जो है, अगर आपको बिजनेस करने में आना है तो वो आपको कोटेशन बनाने के लिए आना चाहिए। आपके सोलर प्रोजेक्ट में कितने कंपोनेंट आएंगे, पैनल कितना आएगा, इन्वर्टर कितना आएगा, केबल का साइज कितना होगा, प्रोटेक्शन का कॉस्ट कितना होगा, सभी का ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे ऐड करोगे, सब कुछ का जो आता है कोटेशन फॉर्मेशन में, वो आपको बनाते आना चाहिए। चौथा जो ऑप्शन है, आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि स्टेट आपका सब्सिडी कितना देता है। बिकॉज सबसे पहले जब हम ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं तो कंज्यूमर यही बोलता है कि हमें सब्सिडी चाहिए। सब्सिडी सभी को नहीं मिलता है। जो भी हमारे रेसिडेंशियल में 10 किलोवाट से नीचे प्रोजेक्ट है, 1 से लेके 10 किलोवाट, उन्हीं को सोलर सब्सिडी मिलता है। हाउसिंग सोसाइटीज की अगर हम बात करते हैं, वो भी रेसिडेंशियल में ही आता है। तो उसमें जितने भी लोग रहते हैं, मैक्स टू मैक्स 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट हम उसमें लगवा सकते हैं। मतलब हर एक घर का मिनिमम 10 किलोवाट का कंजम्पशन लेके हम चलेंगे तो उसमें भी सब्सिडी मिलता है। लाइकवाइज, तो किस स्टेट में, किस क्षेत्र में हमें सब्सिडी मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, वो भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी जो है इस केस में लगेगा जब भी हम बिजनेस में आते हैं। बिकॉज हम कंज्यूमर से जब डील करते हैं तो उनको हमें आंसर इस केस में करना पड़ता है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है लाइजनिंग प्रोसेस। नेट मीटरिंग का एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, नेट मीटरिंग का प्रोसेस कब करना है, उसके बाद डेटा शीट आपको कैसे अटैच करना है, उसके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो हमारी आती है लाइजनिंग प्रोसेस एंड नेट मीटरिंग एप्लीकेशंस के बीच में। तो ये जो 5 पैरामीटर है, ये आपको समझने की जरूरत है अगर आपको सोलर क्षेत्र में आना है, एंड दैट टू बी तो सोलर इंस्टॉलर के क्षेत्र में अगर आपको आना है, तो पांचों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, अब हम थोड़ा बात करेंगे डिजाइनिंग के बारे में। आप लिखते जाइएगा, मैं आपको पॉइंट बताते जाऊंगा कि एग्जैक्टली हम डिजाइन कैसे बनाते हैं, साइट को कैसे हम अप्रोच करेंगे लाइकवाइज उस केस में। तो सबसे पहले जब हमें ऑर्डर मिलता है तो हम जाते हैं साइट एनालिसिस के बारे में। मतलब साइट के ऊपर विजिट करना है आपको, देखना है कि साइट में कितना रूफटॉप एरिया अवेलेबल है, उसके बाद कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट कितना कितना है, कितने लोग वहां पे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉल्टी आता है तो रिवर्स वर्किंग आप कैसे करोगे, उसके बारे में आपको देखना है। दूसरा हम बात करते हैं, जब भी हम साइट में विजिट करते हैं तो आपको ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट फाइंड करते आना चाहिए। बिकॉज जब हम फिजिबिलिटी एप्लीकेशन में, जब हम नेट मीटरिंग एप्लीकेशन करते हैं, उसमें हमें ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स डालने की जरूरत इसमें पड़ती है।
तो ये कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर हमें इसको लगेगा, तो वो भी आपको जानने की इसमें जरूरत है। इसमें आता है लैटिट्यूड, दूसरा आता है लॉन्जिट्यूड और टाइम जोन, इतना हम इसमें कलेक्ट करते हैं जब भी हम साइट में विजिट करते हैं। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, जहां पे भी आप सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करोगे, उस पावर प्लांट के क्षेत्र में एग्जैक्टली उसी रूफटॉप के एरिया के ऊपर कितने सोलर के रेडिएशंस गिरने वाले हैं, वो भी आपको पता करते आना चाहिए। उसके लिए हम कुछ फ्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, जैसे कि कितना रेडिएशन आता है, मंथली बेसिस पे कितना रेडिएशन आएगा, सोलर पावर प्लांट लगवाने के बाद हर महीने में कितना आपको सोलर इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला है, उसका भी फोरकास्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ फ्री सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, तो ये यहाँ से हम रेडिएशन का डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, आप लिखते जाइएगा जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगेगा, जो भी आपको पूछना है वो भी आप इसमें पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो है एरिया असेसमेंट। जब भी हम ऑर्डर लेते हैं, हम साइट के ऊपर जाते हैं, अगर हम छत के ऊपर जाना है तो छत का हमें फोटोग्राफ्स निकालने होते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर से इमेज उसका लेंगे, ड्रोन से इमेज हम उसका लेंगे, उसके बाद हम मोबाइल से उसको क्लिक करेंगे। कुछ टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि वहां पे कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, उसके बाद उसका पैरापेट वॉल का हाइट कितना है, पैनल हम कहाँ से कितना डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, जो दिया गया रूफटॉप एरिया है, अगर कंज्यूमर के पास सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो उसमें कितना पैनल आपका बैठेगा, कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट कितना है और एरिया कितना अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद हम एक रिपोर्ट ड्राफ्ट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेजेस के बीच में साइट का इमेजेस हमें निकालना है, उसके वैल्यूज हमें मेजर करना है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें एक शैडो एनालिसिस यहाँ पे करना होता है। बिकॉज होता क्या है कि कई कई प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि सोलर इंस्टॉलर सोलर पावर प्लांट लगवा तो देते हैं, लेकिन बाद में कंज्यूमर का ये कंप्लेंट आता है कि 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगवाया लेकिन हमें पावर सिर्फ 6 या 7 ही किलोवाट हमें मिलता है, तो बाकी का पावर कहाँ जाएगा और कहाँ जा गया है बेसिकली। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसका प्रॉपर एनालिसिस हमने नहीं किया था, शैडो एनालिसिस। तो इसके लिए भी हम कुछ फ्री सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करते हैं। इन सॉफ्टवेयर का यूज करके पैनल लगवाने से पहले हम चेक करते हैं कि अगर हमने पैनल के बीच में इतना डिस्टेंस रखा है तो ये प्रॉपरली शैडो क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, अब यहाँ से हमें पावर आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लाइकवाइज इसका असेसमेंट भी हम इसमें करते हैं जब हम एनालिसिस की बात यहाँ पे करते हैं बेसिकली। आप नोट डाउन करते जाएगा, इसमें पॉइंट है एक एनालिसिस करना, शैडो ऑब्स्टेकल्स को फाइंड आउट करना, और इसका डिटेल में इंटर रो स्पेसिंग का कैलकुलेशन यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट केस में हम बात करेंगे जब भी हम डिजाइन के बारे में बात करते हैं, उसमें आता है कि सोलर पैनल किस कंपनी का हमें लेना है, किस वॉट कैपेसिटी का सोलर पैनल हमें लेना है। सोलर पैनल की जो डेटा शीट्स है, बिकॉज वारी का एक पैनल हमने लिया, टाटा का एक हमने पैनल लिया, तो दोनों को कंपेयर कैसे करना है, कौन सा पैनल अच्छा होगा इस पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए। बिकॉज हर एक कंज्यूमर के लिए पैनल का कैपेसिटी हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, किसी के पास कम एरिया होगा, किसी के पास ज्यादा एरिया होगा, तो किसी केस में हमें हाफ कट लगवाना पड़ेगा, किसी केस में बाइफेशियल लगवाना पड़ेगा, किसी केस में मोनोक्रिस्टलाइन लगवाना पड़ेगा। तो किस केस में किस को पैनल को लगवाना है, उसके बारे में भी जो जानकारी है वो भी हमें यहाँ पे पता करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन कितना है, कौन से टाइप का पैनल हमने लिया है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कितना आएगा। ओके, दूसरा हम देखते हैं कि सोलर पैनल को हम कनेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिएगा अगर हम 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें अगर आते हैं 32 नंबर ऑफ पैनल, 32 पैनल उसमें आते हैं, तो पूरे के पूरे 32 पैनल हम ज्वाइन तो नहीं करेंगे डायरेक्टली, तो किस पैनल को किस केस में बिठाना है, इन्वर्टर का और पैनल का मैचिंग यहाँ पे हम कैसे करते हैं, तो उसके बारे में जो जानकारी है तो वो भी हमें क्रिएट करने की जरूरत है। आप लिख सकते हो नोटबुक में, इसमें क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ सोलर स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग में कितना सोलर पैनल आएगा वो भी आपका इसमें आएगा, और वोल्टेज का बैलेंसिंग आप इसमें कैसे करते हो, कितने पैनल में कितना वोल्टेज आएगा, करंट आएगा, तो वो बैलेंसिंग हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है बेसिकली, अगर आपको इलेक्ट्रिकल का कुछ भी नॉलेज नहीं है तब भी आप सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर सकते हो, इतना ईजी होता है ये। सिर्फ एक होता है कि हमें डेडिकेशन की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। लाइकवाइज थोड़ा वर्क करके आप आसानी से सीख सकते हो, आसानी से अपना जो बिजनेस है वो यहाँ पे फ्लरिश कर सकते हो। ओके,
दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है, हम डिजाइन लेआउट इसमें बनाते हैं कि पैनल हम कैसे रखेंगे, उसका एनालिसिस इसमें कैसे आएगा, पैनल का टिल्ट एंगल हमें कैसे सेट करना है, मतलब कैसे वो झुकाव कोण होगा, साउथ के डायरेक्शन में रखेंगे कि साउथ ईस्ट में रखेंगे, तो वो भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, बहुत इजी नॉलेज होता है बेसिकली, ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है इसमें। तो ये जो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का नॉलेज है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत लेने की जरूरत है अगर आप इस देश में काम करना इसमें चाहते हो। होता क्या है कि सोलर इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें पता लगता है कि पैनल हमने नॉर्थ की डायरेक्शन में रखा था, तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आता है। इसीलिए ऐसे कुछ फॉल्ट ना हो, इसीलिए थोड़ा बेसिक नॉलेज की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। ओके। दूसरा हम देखेंगे कि इन्वर्टर किस कंपनी का लेना है, किस साइजिंग का लेना है, आप नोट डाउन कर सकते हो इसमें। स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर हम देखते हैं सबसे पहले, किस टाइप का इन्वर्टर है, स्ट्रिंग इन्वर्टर है कि आपका सेंट्रल वाला इन्वर्टर है कि आपका माइक्रो वाला इन्वर्टर है कि एसी पैनल में अटैच किया हुआ इन्वर्टर है, लाइक वाइज। दूसरा इसमें आता है कि एनपीपीटी हर एक इन्वर्टर में कितना आएगा। ये थोड़े टेक्निकल पैरामीटर हो गए बेसिकली, आप लोग कुछ लोगों को समझ नहीं आ सकता है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें आएगा, एनपीपीटी क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन समझ में आ जाता है, एक दो बार पढ़ने से समझ में आसानी से आ जाता है। तो ये भी थोड़ा बहुत हम इसमें देखते हैं। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एसीडीबी डीसीडीबी का साइजिंग हमें कैसे करना है, कौन कौन से पैरामीटर हम इसमें देखते हैं। एसीडीबी और डीसीडीबी का मतलब होता है प्रोटेक्शन ब्रेकर्स। प्रोटेक्शन ब्रेकर्स मतलब अगर सोलर पैनल सोलर पैनल से या फिर वोल्टेज अगर करंट ज्यादा आता है तो प्रोटेक्ट कैसे करोगे, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस किस साइज का लेना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किस साइज का लेना है, फ्यूजेस हम कैसे अटैच करेंगे, तो उसके बारे में जो जानकारी है तो वो भी थोड़ा बहुत होने की इसमें जरूरत है। या फिर आप किसी इलेक्ट्रिकल पर्सन को हायर करके वो काम इसमें करवा सकते हो, अगर आपको इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में अगर नॉलेज नहीं है तो। ओके। नेक्स्ट है नेट मीटर का। तो नेट मीटर हमें परचेस करना पड़ता है, जो कि हम बोलते हैं बाय डायरेक्शन मीटर। आपने सुना होगा स्टेट में नेट मीटरिंग का पॉलिसी काफी चलता है, नेट मीटरिंग का, ग्रॉस मीटरिंग का। तो उस केस में मेजर कैसे होता है कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम को भेजा और डिस्कॉम से हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी लिया था, तो उसका जो बैलेंसिंग है वो नेट मीटर में आता है। इसमें कुछ टेस्टिंग रिपोर्ट हमें जनरेट करना पड़ता है जब भी हम इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद हम वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करवाते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, किस कंपनी का लेते हैं, नेट मीटरिंग लेने के टाइम पे कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो ये थोड़ा बहुत हमें जानने की जिस पे जरूरत होती है। ओके। उसके बाद आता है केबल। डीसी केबल हम कैसे लेंगे, एसी केबल हम कैसे लेंगे, उसमें से कितना वोल्टेज और करंट पास हो सकता है वो हम कैसे जानेंगे, तो ये भी हम थोड़ा बहुत जानने की इसमें जरूरत है, आप नोट डाउन कर सकते हो। वोल्टेज और करंट का कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है इसमें, एम्पेसिटी का कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है, किस केबल का गेज साइज कितना होगा वो हमें देखना यहाँ पे पड़ता है, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट का ड्रॉप लॉस कितना होगा, तो वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कितना केबल लेना चाहिए, हर एक केबल का कितना साइजिंग का कैपेसिटी इसमें होना चाहिए। लाइक वाइज थोड़ा डिटेल में ये केस इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर में आता है। ओके। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जिसके ऊपर आप पैनल लगवाओगे। आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में किसी लोगों ने पैनल लगवाया होगा, तो जिसके ऊपर वो पैनल लगवाया है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें किस मटेरियल का मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर लेना है, अगर हमें सब्सिडी अवेल करवाना है, एमएनआरई का गाइडलाइन अगर फॉलो करना है, तो हॉट डिप गैल्वेनाइज आयरन का मटेरियल हम यहाँ पे लेते हैं। उसका डिजाइन कैसे होगा, उसका कॉलम का हाइट वगैरह कैसे होगा, उसका कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत इसमें आता है, आप नोट डाउन करेंगे इसमें। रूफटॉप और ग्राउंड ओरिएंटेशन, उसका डिजाइन थोड़ा इसमें अलग आएगा, मटेरियल कौन सा इसमें यूज करेगा उसका डिजाइन, उसके बाद स्ट्रक्चर का डिजाइन कैसे होगा, उसका हाइट कैसे होगा, टिल्ट एंगल हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो कुछ गिने चुने जो पैरामीटर है वो आते हैं। अभी के लिए अगर आप मार्केट में देखते हो तो काफी सारे जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने अब तो रेडीमेडली मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, तो हमें सिर्फ पैनल लगवाने की उस पर जरूरत पड़ती है, इतना आसान हो चुका है। अगर हम देखते हैं मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ओके। दूसरा इसमें आता है बीओएम प्रिपरेशन एंड कोटेशन फॉर्मेशन। तो इसमें हम लिस्ट करते हैं कि कितना हमें कॉस्ट आएगा, कितना मटेरियल इसमें आएगा, और एक कोटेशन यहाँ पे हम इसमें ड्राफ्ट करवाते हैं। तो इसमें लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, क्वांटिटी कितना होगा, वेंडर किस वेंडर से हम यहाँ पे परचेस करेंगे,
और उसका कॉस्ट कितना होगा पर यूनिट के हिसाब से, उसमें जीएसटी कितना ऐड करना है। जैसे कि सोलार में 12% ऑफ जीएसटी इसमें आता है। जैसे कि हम पैनल ले लिया हमने, इन्वर्टर हमने ले लिया, तो उसमें 12% ऑफ जीएसटी होता है। और बाकी के जो पैरामीटर है आपके, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर आपका हो गया, केबल्स आपके हो गए, प्रोटेक्शन ब्रेकर्स आपका हो गया, उसमें 18% ऑफ द जीएसटी आता है। तो किस पैनल पे किस यूनिट के ऊपर कैसे कैसे जीएसटी का पैरामीटर हमें लिखना है, तो वो थोड़ा इकोनॉमिकल पैरामीटर इसमें आता है। तो मैंने बेसिकली कोटेशन का एक सैंपल फॉर्मेट ड्राफ्ट किया है, तो उसमें सिर्फ आपको पैनल का जो कैपेसिटीज वगैरह है, उसका कॉस्ट वगैरह है, वो सिर्फ डालना है, तो ऑटोमेटिकली कोई जो कोटेशन वगैरह है तो वो यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। तो इसमें आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज सभी के सभी लोग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। तो लाइक वाइज एक सैंपल कोटेशन की आपको इसमें जरूरत पड़ती है, एक फॉर्मेट। ओके, तो ये हो गया, हमने बात किया था ऑल द करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आपको अच्छे खासे लगा होगा कि कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकते हैं। और जो हम डिजाइन पैरामीटर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के आपके डिजाइन इसमें होते हैं, तो उसके बारे में हमने बात किया। तो जो हर एक जो पैरामीटर है वो काफी डिटेल में पैरामीटर होता है। जैसे कि पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, तो उसको पढ़ाने का एक मैंने अलग सा तरीका डेवलप किया है। मैंने खुद बेसिकली, मैं खुद ऑथर भी हूँ एक बुक का, टू जेड डिजाइन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। और हमारे 40 से ऊपर सिर्फ सोलार के ही कोर्सेस हैं। इसमें सभी कोर्सेज वगैरह आते हैं, हीटर से लेके वाटर हीटर से लेके सभी सॉफ्टवेयर से लेके काफी सारे कोर्सेज मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं और वेबसाइट्स के ऊपर है बेसिकली वो। तो हमने क्या किया है कि ये सब कुछ, मेरे पास काफी सारे लोगों का रिक्वायरमेंट भी आया था कि उनको डिटेल में सीखना है ये पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज हर एक पैरामीटर डिटेल में इसमें आता है। तो हमने 4 दिन का एक वर्कशॉप रखा है, 23, 24, 25 और 26, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, ये 4 दिन हमने रखा है। मतलब आने वाले जो वीक में ये वर्कशॉप होने वाला है। टाइमिंग होगा आपका सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक, हर दिन 2 घंटे का ये वर्कशॉप होगा, 2 घंटे का वर्कशॉप होगा। तो ऐसे आपको 8 घंटे का लाइव गाइडेंस मैं आपको दूंगा। इसमें होगा कि हम डिजाइन कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं, डिजाइन हम कैसे करेंगे, कंपोनेंट कोटेशन हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस हम कैसे करेंगे, उसके बाद पॉलिसी और सब्सिडी पैरामीटर क्या क्या होता है, और लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर वगैरह होता है, और बिजनेस गाइडेंस, वो सब कुछ डिटेल में आपको ये 4 दिन के वर्कशॉप में मैं दूंगा इसमें। तो इसमें आपका हर दिन 2-2 घंटे का होगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा, और आपका रिकॉर्डिंग्स भी वगैरह इसमें होता है। तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप, 4 दिन का वर्कशॉप हो जाने के बाद हम आपको 7 ऑनलाइन जो कोर्सेज है हमारे रिकॉर्ड किए हुए वीडियो लेक्चर्स, उसका जो असिस्मेंट है वो भी हम आपको देंगे वीडियो लेक्चर्स वेबसाइट के ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको, आई थिंक किसी पार्टिसिपेंट का माइक ऑन है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा। ओके फाइन। ओके, तो वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको बोनस भी दिए जाएंगे। ये हमारा दिवाली बोनस है। इसमें हमारे वेबसाइट के ऊपर जो कोर्सेज है, ऐसे आपको 7 कोर्स बोनस में यहाँ पे मिलते हैं आफ्टर कोर्स हो जाने के बाद, 4 दिन का हो जाने के बाद। तो सबसे पहला जो बोनस है, आपको ये कोर्स फ्री में मिलेगा। ये है डिजाइन केस स्टडी ऑफ 10 किलोवाट 50 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पावर का। इसमें इस कोर्स में हमने केस स्टडी कवर किया है 50 किलोवाट का और 10 किलोवाट का। डिजाइन केस स्टडी यहाँ पे आएगा। पूरे 15 घंटे का ये कोर्स है, 15 घंटे के वीडियो लेक्चर्स है। इसका प्राइस है 3000 रुपीज का। अगर हमारी वेबसाइट से अगर आप परचेस करते हो तो ये भी आपको एक फ्री में मिलेगा एज एन बोनस आफ्टर पार्टिसिपेशन इनटू द वर्कशॉप। दूसरा बोनस आपको यहाँ पे मिलेगा, दूसरा कोर्स वो है केस स्टडी ऑफ ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड पावर प्लांट, जिसमें बैटरी आता है कि अगर आपको बैटरी वाला पावर प्लांट डेवलप करना है तो आप कैसे उसका डिजाइन करोगे, कैसे उसका रिपोर्ट्स वगैरह बनाओगे। तो ये 12 घंटे का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स 12 घंटे का। इसका प्राइस है 2500 का वेबसाइट के ऊपर हमारे। तो ये आपको एक फ्री में मिलेगा आफ्टर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कशॉप। तीसरा जो बोनस है वो आपको मिलेगा, एक बेसिक कोर्स मैंने डेवलप किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट करके। 16 घंटे का ये कोर्स है, 16 घंटे का ये कोर्स है बेसिकली। इस कोर्स में ऑलमोस्ट 126 कंट्री में से 1000 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, 126 कंट्री में से। ये कोर्स यूडी में भी मेरा अवेलेबल है, एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑथर एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स डेवलपर एज एन उडेमी से मुझे यहाँ पे मिला है। उडेमी आपने वेबसाइट सुना होगा बेसिकली,
तो उसमें सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाला ये मेरा कोर्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर पावर प्लांट करके, 16 घंटे का ये कोर्स है। इसका यूडीमी वेबसाइट के ऊपर प्राइस है आपका 8,000 रुपए का, मेरे वेबसाइट पे प्राइस है आपका 3,000 रुपए का। तो ये भी कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। ये कोर्स उनके लिए है जिनको सोलार में कुछ नहीं पता है, ए से लेके बी भी नहीं पता है उनको। तो मैं स्टार्टिंग से मैं उनको यहाँ पे पढ़ाता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स, ये वीडियो लेक्चर्स है यहाँ पे। तो ये भी आपको 16 घंटे का कोर्स बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलेगा। चौथा जो आपका कोर्स है वो है गूगल स्केचअप सॉफ्टवेयर के ऊपर शैडो एनालिसिस करवाना मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो जैसे का वैसा सोलर पावर प्लांट आपको अपने स्केचअप में डिजाइन करना है, और उसका वीडियो एनिमेशन आप जो है अपने कंज्यूमर को दिखा सकते हैं। मगर इसका मतलब अगर एक कंज्यूमर के पास 4-5 सोलर इंस्टॉलर का अगर ऑर्डर आता है तो उसमें से जो सबसे पहले अपर हैंड है वो आपको मिलेगा। Because the way of writing the feasibility report, the way of writing the design reports, proposal and this video animation, ये एक इम्पैक्ट करता है कंज्यूमर के ऊपर। लाइकवाइज तो ये जो कोर्स है 10 घंटे का ये कोर्स है, एक्चुअल में माउंटिंग स्ट्रक्चर के साथ इसमें डिजाइन सिखाना पढ़ाया जाता है। ये 3,000 रुपए का कोर्स है, ये भी आपको एकदम फ्री में मिलेगा, शैडो एनालिसिस वाला कोर्स। ओके, पांचवा जो कोर्स है उसमें मैं सिखाता हूँ आपको प्रपोजल कैसे लिखते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपको प्रपोजल कैसे लिखना है, डिजाइन रिपोर्ट आप कैसे लिखोगे एकदम प्रोफेशनल तरीके से कैसे लिखोगे। तो ये 3 घंटे का कोर्स है, इसका प्राइस है 2,500 का, ये भी आपको फ्री में मिलेगा एज एन 5th बोनस कोर्स। ओके, छठवा जो हमारा कोर्स है वो है सोलर टेक्निकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिनमें सेल्स, जिनको सेल्स में काम करना है। तो सेल्स में क्या क्या पैरामीटर सोलार में आते हैं। तो ये है 2 घंटे का कोर्स, ये भी आपको एक फ्री में मिलेगा अगर आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट इसमें किया है। 2,000 रुपए इसका प्राइस है लाइकवाइज, तो ये भी फ्री में इसमें आएगा। ओके, नेक्स्ट जो सातवां हमारा जो कोर्स है वो है सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन विथ डेटा शीट। तो यहाँ पे जितने भी सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, ग्राउंड माउंट हो गया, कारपोर्ट हो गया, या फिर आपका रूफटॉप हो गया, तो सबका डेटा शीट के साथ आपको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे डेवलप किया है बेसिकली। तो ये भी आपको इसमें फ्री में मिलेगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो बेसिकली। ओके, और जो भी हमारे वर्कशॉप्स होते हैं इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलता है वेबसाइट के ऊपर। किसी किसी केस में होता है कि लोग जॉब करते हैं, तो जॉब के केस में 1 आध घंटे वो अटेंड नहीं कर पाते, कोई ऑप्शन छूट जाता है उसमें। तो आप इसमें रिकॉर्डिंग जो है आप आसानी से सुन सकते हो, कभी भी आप इसमें सुन सकते हो। दूसरा इसमें एक ऑप्शन हमने दिया है, अगर आपने इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है और किसी कारण से आपने 1 या 2 दिन का अगर आपने मिस कर दिया है बेसिकली, तो आने वाले जो हमारे सेशंस है उसमें आप फ्रीली अटेंड कर सकते हो। नॉट नेसेसरी, अगर आपको इस वर्कशॉप में नहीं भी समझा है कुछ पैरामीटर, तो वापस से सेम वर्कशॉप में हर 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हम वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। तो उसमें आप फ्रीली पार्टिसिपेट करके वापस से जो अपना कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आप इसमें क्लियर करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपको स्टडी मटेरियल पूरा इसमें मिलेगा। इसमें आपको सभी जो डिजाइन रिपोर्ट्स है, इनिशियल रिपोर्ट्स, केस स्टडी रिपोर्ट्स वो मिलेंगे। जो मैंने डिजाइन एक्सेल शीट बनाया है, एसी केबल डिजाइन, अर्थिंग डिजाइन, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिकल मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल का असेसमेंट हम कैसे करते हैं, और सोलर स्ट्रिंग हम डिजाइन कैसे करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड प्रीमियम एक्सेल शीट मैंने बनाया है। तो वो पर्टिकुलर एक्सेल शीट रिपोर्ट्स आपको डिटेल में यहाँ पे स्टडी मटेरियल का क्लासरूम मिलेगा वेबसाइट के ऊपर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका एडिटेबल मटेरियल है, अगर आप बिजनेस करते हो आफ्टर द सोलर वर्कशॉप, तो अपने बिजनेस में आप वो जो एक्सेल शीट है, वो जो रिपोर्ट्स है, उसका रेफरेंस लेके आपको यहाँ पे कर सकते हैं। आपको सैंपल कोटेशन का फॉर्मेट मिलेगा, उसमें सिर्फ आपको कंपोनेंट डाल के कोटेशन भी ड्राफ्ट करेंगे। तो मतलब आपका जो काम है इन सोलर बिजनेस में वो मैंने काफी तरीके से आसान इसमें कर दिया है। तो ये मैंने काफी साल डेवलप करने के बाद ये सब पैरामीटर्स यानी ये सब केस स्टडीज वगैरह डेवलप किए हैं। तो इसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा अगर आप वर्कशॉप में यहाँ पे पार्टिसिपेशन करवाते हो। ओके, एंड द लास्ट बेनिफिट जो है वो है आपको 1 साल का फॉलोअप हमारे तरीके से मिलेगा। मतलब अगर आपने वर्कशॉप अटेंड किया, उसके बाद आपने 7 कोर्स कंप्लीट किया है, तो आपको पूरा 1 साल का बैकअप मिलेगा जब तक आपका बिजनेस सेटअप नहीं होता। तकरीबन आपको कोई भी डाउट हो इसमें, डिजाइन के केस में, बिजनेस के स्टेट में, मार्केटिंग के केस में, तो सभी के सभी जो डाउट्स है तो वो हम यहाँ पे क्लियर करवाते हैं। हमारे जो 1 साल का जो फॉलोअप होता है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। उसमें ही जो रिसेंट जो पॉलिसीज गाइडलाइंस वगैरह होते हैं
वो सब अपडेट किए जाते हैं। और वहाँ पे जो गाइडेंस वगैरह है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या फिर जो हमारे डब सेशन होते हैं, डाउट सेशन, तो उसमें भी आप लाइव डाउट सेशन में आके उसमें द डाउट जो अपने हैं वो इसमें क्लियर इसमें करवा सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप वर्कशॉप में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो एज एन फॉलो अप गाइडेंस। और जो लास्ट है वो आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मिलेगा। तो वर्कशॉप का आपका एक सर्टिफिकेट आएगा 4 दिन पार्टिसिपेशन का, और 7 ऑनलाइन कोर्सेज आपने अटेंड किया है और कंप्लीट वो किया है, उसका भी आपको 7 अलग-अलग सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा। लाइकवाइज तो टोटल 8 सर्टिफिकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप एंड कोर्सेज आपको यह अलॉट किया जाएगा आपके नाम के ऊपर। तो इतने हमारे जो बोनस बेनिफिट है वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो हमने यहाँ पे रखे थे बेसिकली। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। किसी को अगर डिटेल में इसमें पढ़ना है तो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। ओके, तो इसका मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। जो कि हम रेगुलर वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, आपने पहले भी ऐड देखा होगा मेरा फेसबुक के ऊपर, काफी ऐड मेरा चलता है बेसिकली फेसबुक के ऊपर। तो इसका जो प्राइस है लास्ट टर्म में हमने रखा था 3,600 रुपए का प्राइस, जो हमारा लास्ट वेबिनार यहाँ पे हुआ था। लेकिन एज एन दिवाली ऑफर हमने 500 रुपीज ऑफ रखा है इस केस में। अगर आप लाइव वेबिनार में अगर अपना सीट बुक करते हो लाइव वेबिनार में, तो ही ये ऑफर